اپنے شوہر کی فرما برداری کی وجہ سے، اپنے خامد کی تابعداری کی وجہ سے تیرے والد کی اللہ نے مغفرت فرما دی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ شوہر کی فرما برداری کے عمل کی وجہ سے اس عورت کی یعنی بیوی کے باپ کی اللہ رب العزت نے مغفرت فرما دی۔ کیا وہ عورت جو پردے میں اندر رہے گی، شوہر کی فرما بردار بن کر رہے گی، اپنے خامد کی تابعدار بن کر رہے گی، کیا رحیم و کریم اور شفیق و مہربان رب اس عورت کی مغفرت نہیں فرمائے گا؟ یقیناً ضرور فرمائے گا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ خواتین پردہ کریں، ہماری مائیں بہنیں اپنے خاوندوں کی تابعداری کریں، اپنے شوہروں کی فرمانبرداری کریں، ان کی بات مان کر چلیں۔ باپ جیسا قریبی رشتہ جب اس کی عیادت اور موت پر شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے تو پھر شوہر کی اجازت کے بغیر خاتون گلہ دھار کے اجتماع میں کیسے آ سکتی؟ اور آج تو سیاست عروج پر ہے۔ خطہ جموں کشمیر میں سیاست کی خوب گہما گہمی ہے، مرد تو لگے ہیں، عورتیں بھی سیاست میں مصروف ہیں۔ اور کل ہی ہمارے ادھر ترکام کے ایک مولوی صاحب ہیں، وہ فرما رہے تھے دوسرے مولوی صاحب سے کہ یہ فلاں عورت جس کو میں جس دن سے اعلان ہوا ہے 16 تاریخ کو 16 اگست کو شاید اعلان ہوا تھا الیکشن کا، اسی دن سے میں آج تک دیکھ رہا ہوں بہرحال کے مختلف علاقہ جات میں الیکشن مہم پہ چل رہی ہے۔ کہا اس کے شوہر کے بھی کچھ حقوق ہیں، یہ آج ایک رات یہاں گزار رہی ہے، کل رات وہاں گزار رہی ہے، پرسوں رات وہاں گزار رہی ہے، اور بے حیائی میں بے پردہ ہو کر جو ہے اس طرح سے چل پھر رہی ہے، تقاریر کر رہی ہے۔ اس کے لیے اس کی کوئی جوازیت ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تم زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح بے پردہ ہو کر اپنے گھروں سے باہر نہ نکلو، پردے میں اپنے گھر کے اندر رہو، اور گھر میں بھی اگر کوئی باہر آئے تمہارے گھر کے کسی بندے کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے تو اس کے ساتھ نرمی میں گفتگو نہ کرو، بلکہ سخت لہجے میں بات کرو، تاکہ دوبارہ وہ اس طرح سے تمہارے گھر میں تمہارے شوہر کی اور گھر کے مرد کی عدم موجودگی میں کبھی آنے کی ہمت نہ کرے۔ اگر تم نرمی میں بات کرو گی، بیٹھو جی بیٹھک کار میں، اچھا جی چائے پیو گی، چائے پیو گے یا ٹھنڈا پیو گے، میں ابھی آپ کے لیے آتی ہوں تو وہ لاتی ہوں، پھر وہ کبھی بھی جو ہے آئے جائے گا، اور اسی طرح سے خواتین بے پردہ ہو جاتی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا آدم علیہ السلام و تسلیم کے سر سے حوا علیہ السلام کو پیدا اس لیے نہیں کیا کہ کئی خواتین مردوں کو غلام بنا کے ان کے سروں کے اوپر سوار نہ ہو۔ پھر پاؤں سے پیدا کیوں نہیں کیا؟ فرمایا پاؤں سے پیدا اس لیے نہیں کیا کہ کئی مرد خواتین کو اپنے پاؤں تلے روند نہ ڈالیں، اپنے پاؤں تلے کچل نہ دیں، ان کے حقوق کو پامال نہ کر دیں، اس لیے پاؤں سے پیدا نہیں کیا۔ کیونکہ خواتین کے بھی حقوق جس طرح شوہر کے حقوق ہیں، اسی طرح سے بیوی کے بھی حقوق ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے، سب سے بہتر وہ شخص ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ باہر کوئی ولی بنا پھرے، تسبیح ہاتھ میں ہو، ذکر تسبیحات تلاوت
अवामीन जाश तहज्जुद का पाबंद हो, सारे लोग चर्चा करते हो कि ये बड़ा नेक है, सालेह है, लेकिन घर में अहल अयाल के साथ, अपनी बीवी के साथ अगर उसका सुलूक अच्छा नहीं है तो उसकी तस्बीह का, उसकी तिलावत का, उसके नवाफिल का, उसकी उस इबादत का उसे कोई सवाब नहीं है। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया है, खैरुकुम लिअहलिही, तुम में से सबसे अच्छा वो है कि जो अपनी बीवी के साथ अच्छा। न सर से पैदा फरमाया, न पांव से पैदा फरमाया, बल्कि पसली से पैदा फरमाया। और वो पसली भी किस तरफ की? बाएं जानिब की तरफ। और बाएं पहलू में दिल होता है। दिल किस तरफ होता है, बाएं या दाएं? बाएं पहलू में होता है ना दिल, बाएं पहलू में दिल होता है। बाएं पसली से इसलिए पैदा फरमाया क्योंकि दिल बाएं जानिब है, और दिल की जानिब वाली पसली से पैदा फरमाया ताकि खवातीन किसी भी हैसियत से हो वो दिल के करीब रखने के लायक। और खवातीन की बुनियादी तौर पर 4 हैसियतें हैं। मां की हैसियत है, बहन की हैसियत है, बेटी की हैसियत है, और बीवी की हैसियत है। खातून अगर मां है तो उसको भी अपने दिल में जगह देने की जरूरत है, और मां के कितने हुकूक शरीयत में मौजूद है। अगर बेटी है तो उसे भी दिल के करीब रखना है, अगर बहन है तो उसे भी दिल के करीब रखना है। बेटी और बहन के कितने हुकूक हैं, अगर वो मैं बयान करने लगूं तो बात मौजू किसी और तरफ चला जाएगा। और अगर बीवी है तो बीवी को भी अपने दिल के अंदर जगह देने की जरूरत है, और जो बीवी को अपने दिल के अंदर जगह देगा उसकी निगाहें कभी किसी और की जानिब ललचाई हुई नहीं उठेंगी। वो अपनी नजरों की भी हिफाजत करेगा, वो अपने दिल की भी हिफाजत करेगा, वो अपने नफ्स की भी हिफाजत करेगा, वो अपनी ख्वाहिशात की भी हिफाजत करेगा, क्योंकि उसने अपनी बीवी को दिल में जगह दे रखी। इसलिए बाएं जानिब की पसली से पैदा किया। अल्लाह कादिर था नरम से गोश्त से पैदा करता, पसली से पैदा क्यों किया? इसलिए कि पसली टेढ़ी होती है, और अगर कोई उसको सीधा करने की कोशिश करेगा सख्ती के साथ कि मैं इसको सीधा करूं, तो वो सीधा नहीं होगी बल्कि वो टूट जाएगी। इसी तरह औरत के अंदर चूंकि वो टेढ़ी पसली से ही पैदा हुई है, उसके अंदर टेढ़ापन जरूर होगा। इतना चाहो आप औरत का टेढ़ापन खत्म करो, वो कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, अगर शिद्दत की, सख्ती इख्तियार की, तशद्दुद बढ़ता तो वो टूट जाएगी, उससे रिश्ते मुनक़ता हो जाएंगे, वो सीधी नहीं होगी। वो जा तो सकती है, वो अपने शौहर को छोड़ तो सकती है, लेकिन सीधी नहीं होगी। बस उसको एतदाल की राह पे चलाने के लिए बहुत नरमी के साथ समझाने की जरूरत है, टहलाने की जरूरत है, उसकी हौसला अफजाई की जरूरत है। और जब उसकी हौसला अफजाई होगी, उसकी जहन साजी होगी, उसको समझाया जाएगा, फिर औरत से बड़ी वक्त की बलिया कोई नहीं है। और औरत ही है जिसके बटन से अंबिया पैदा हुए हैं, औरत ही है जिसके पेट से सहाबा पैदा हुए हैं, औरत ही है जिसके पेट से औलिया कामिलीन पैदा हुए हैं। हज़रत शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी बैठक गाह के ऊपर आज हम यहाँ जमा हुए हैं, वो भी आखिर किसी माँ के सपूत थे, किसी माँ के फर्जंद थे, किसी माँ के बेटे थे। जब माएँ नेक होती हैं तो फिर अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह जैसी औलाद पैदा होती है। जब माएँ नेक होती हैं तो फिर हजरत शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जैसी औलाद पैदा होती है। जब माएँ नेक होती हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जैसी औलाद
औलाद पैदा होती है, जब माएँ नेक होती हैं, इमाम सुबहानी व रब्बानी हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया जैसी औलाद होती है, जब माएँ नेक होती हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जैसी औलाद होती है, जब माएँ नेक होती हैं, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जैसी औलादें पैदा होती हैं। और जब माएँ बदखसरत हो जाएं, जब माएँ बदचलन हो जाएं, जब माएँ बदकिरदार हो जाएं, तो फिर शराबी और कबाबी और जवारी पैदा होते हैं। और आज हमारे माशरे के अंदर यही कुछ हो रहा है। हम खुद शिकायत करते हैं, माँ आती है, मौलवी साहब तावीज दे दो, मौलवी साहब कोई दम करके ये शरीरी दे दो, दम करके पानी दे दो, इसलिए कि मेरा बेटा मुनशियात का आदी हो चुका है, इसलिए कि मेरे बेटे को नशे की लत लग चुकी है, मेरा बेटा बेराहरमी का शिकार हो चुका है, मेरा बेटा भटक चुका है, मेरा बेटा रात को देर से आता है, बाप को भी मारता है, मुझे भी मारता है, कोई तावीज दे दो कि वो सुधर जाए, उसकी इस्लाह हो जाए। जिस किरदार की मालिक माँ होनी चाहिए, उस किरदार की मालिक जब तू नहीं रही तो तेरी औलाद वैसी ही पैदा होनी थी, वैसी ही हो रही है। अब मौलवियों से, पीरों से, फकीरों से जाकर शिकायत क्यों करती है, गिला शिकवा क्यों करती है? गिला शिकवा करना है अपने आप से कर, अपनी इस्लाह कर। ए माँ, अगर तेरी इस्लाह हो जाएगी तो आज भी माँओं के पेट से अल्लाह के वली पैदा होंगे। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा। ऐ इंसानों, डरो उस रब से जिस रब ने तुम्हें एक जात यानी आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया और उनकी ज़ौजा यानी हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को उनकी बाएं पसली से पैदा फरमाया। वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। और फिर इन दोनों से नस्ल इंसानी के सिलसिले को आगे चढ़ाया, बहुत सारे मर्द और बहुत सारी औरतें पैदा फरमाई और नस्ल इंसानी का सिलसिला चलता रहा। यहां पर कई मज़ामीन ज़हन में आ रहे हैं। अलबत्ता शुरू में मैंने जो बात उठाई थी वो बात थी एहतराम इंसानियत की। यहां चिट भी आ गई है कि जिन लोगों ने चंदा जमा किया है वो एक एक करके हमारे स्टेट सेक्रेटरी के पास आए और चंदा इनके पास जमा करवाते रहे, ताकि इजलास के इख्तिताम पर इसके पूरा जो आमद और सर्फ का हिसाब है वो आपके सामने बसहूलत पेश किया जा सके। बहरहाल या अय्युहन्नास से एहतराम इंसानियत पर एक मज़मून में आप तक पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसमें अगर हमारे बरादरान वतन भी यहां मौजूद होते तो बहुत अच्छा होगा। और वक्त भी कम है, बातें बहुत कहनी है और ये एक नया मौजूद छेड़ने के लिए एक और चिट दे दी गई। अभी पता नहीं कितनी चिटें ये देंगे। इसलिए आइंदा के लिए जब गल्ला दहार में आप प्रोग्राम रखें, अल्लाह सबको सलामती के साथ जिंदगी अता फरमाए। आप हजरात भी शरीक हों, हमारे उलमा भी शिरकत फरमाए। जिंदगी रही तो मैं भी हस्ब साबिक शिरकत करूं। उस प्रोग्राम में हमारे गैर मुस्लिम भाई,
ہمارے جو برادران وطن ہیں وہ بھی یہاں ہوں، اور ہم اصلاح معاشرہ کے بجائے یہاں پروگرام رکھیں پیام انسانیت،